This is not a religious book. ये किसी धर्म की किताब नहीं है. This is the word of the living God. ये जीवित परमेश्वर का वचन है. I said this is the word of the living God. मैंने कहा ये जीवित परमेश्वर का It वचन है. carries the power of God. इसमें परमेश्वर का सामर्थ्य है. Jesus said in John 6:63, the words that I speak to you, they are spirit and they are life. यूहन्ना 6:63 में यीशु ने कहा, जो वचन मैं तुमसे बोलता हूँ वो आत्मा और जीवन है. आप में से कई लोगों का जीवन इसलिए खराब नहीं है क्योंकि शैतान बहुत सामर्थी है. Some of you are not living a terrible life because the devil is powerful. शैतान की गलती नहीं है उसमें. It's not the devil's fault. The word of God says in Hosea 4:6, my people are destroyed for the lack of my knowledge. होशिया 4:6 में लिखा है, मेरे लोग मेरे ज्ञान की कमी की वजह से नाश होते हैं. परमेश्वर ये नहीं कह रहा मेरे लोग इसलिए नाश हो जाते हैं क्योंकि शैतान बहुत सामर्थी है. God is not saying my people are destroyed because the devil is powerful. क्योंकि बहुत महंगाई है. Oh, because it's too expensive. क्योंकि बहुत वायरसेस हैं. There are many viruses. नहीं. No. एक ही कारण है. Only one reason. क्योंकि उन्हें मेरे वचन का ज्ञान नहीं है. Because they do not have the knowledge of my word. So आज एक निर्णय लो. So tonight make this decision. That you will start loving the word of God. कि आप परमेश्वर के वचन से प्यार करने लगोगे. You will hold it close to your heart. आप उसको अपने दिल के You करीब will रखोगे. spend time in the word of God day and night. परमेश्वर के वचन में दिन रात समय बिताओगे. कितने लोग यहाँ पे सक्सेसफुल होना चाहते हैं? How many of you want to be successful in life? Okay. God has already given us the answer. परमेश्वर ने पहले से इसका उत्तर हमें दे दिया है. It's a sure shot victory. ये पक्की जय है, गारंटी जय है. God told Joshua in Joshua 1:8. परमेश्वर ने यहोशू से बोला, This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, so that you may observe to do all things that are written in it, for then you will make your way prosperous and you will have good success. व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इस पर दिन रात मनन करना और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करना. ऐसा करके तू अपने सब कामों को सफल बनाएगा और अपने जीवन में प्रभावशाली होगा. It's not difficult. ये मुश्किल नहीं है. It's easy. आसान है. All that you have to do is आपको बस इतना करना है. start to love the word. वचन से प्यार करना शुरू कर दो. This is not a religious book. ये धार्मिक किताब नहीं है. This is not a religious book. ये किसी धर्म की किताब नहीं है. This is the word of the living God. ये जीवित परमेश्वर का वचन है. I said this is the word of the living God. मैंने कहा ये जीवित परमेश्वर का It वचन carries है. the power of God. इसमें परमेश्वर का सामर्थ्य है. Jesus said in John 6:63, the words that I speak to you, they are spirit and they are life. यूहन्ना 6:63 में यीशु ने कहा, जो वचन मैं तुमसे बोलता हूं वो आत्मा और जीवन है. Every time you are fellowshipping with the word, you are fellowshipping with the spirit of God, you are fellowshipping with the life of God. हर बार जब आप वचन के साथ समय बिताते हो, आप परमेश्वर की आत्मा के साथ, उसके जीवन के साथ समय बिताते हो. Faith comes by hearing, विश्वास सुनने से आता है and hearing by the word. और परमेश्वर के वचन को सुनने से. So जब परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली इस बात को लेकर, When God opened my eyes to this truth, तो मैंने सोचा कि मैं अब परमेश्वर के वचन में समय बिताऊंगा. I decided I will spend time in the Word of God. और जैसे जैसे मैं परमेश्वर के वचन केवल पढ़ता नहीं गया, मगर उस पर मनन करता गया, उसे अपने अंदर बार बार अपने आप से बोलता गया, हल्के हल्के करके बीमारियां जाने लगी, हल्के हल्के करके गरीबी जाने लगे, हल्के हल्के करके कर्जे जाने लगे. मैं एक जयवंत जीवन जीने लगा. एक जय से दूसरी जय, दूसरी जय से तीसरी जय देखने लगा. And as I started to meditate on the Word of God, I started to obey the Word of God. I started to see slowly and gradually sicknesses started to leave me, debts started to leave me, and I started to see victory in every area of my life. मैं फिर से आपसे पूछता हूँ, कितने लोग जयवंत जीवन जीना चाहते हैं? जगह I'll ask you again, how many want to live a victorious life? तो फिर ये जो वचन है, आपको इसके प्रेमी हो जाना है. Then become lovers of this word. कई विश्वासी हैं, कई मसीह लोग हैं, वो 3 इंजेक्शन लेने के लिए आते हैं साल में. ECG.
Some believers come to take 3 injections in the year, ECG, चर्च में. in the church. जानते 3 इंजेक्शन कौन कौन से हैं? You know what 3 injections? ई ईस्टर, सी क्रिसमस और जी गुड फ्राइडे. Easter, Christmas and Good Friday. और वो वैसे हैं जैसे रिश्तेदार, आपको रिश्तेदार शादी में मिलेंगे, कोई शादी होगी, कोई पार्टी होगी, उसमें रिलेटिव आते. यीशु के रिश्तेदार नहीं बनना है, यीशु के प्रेमी बनना है, रोज मिलना है उससे, रोज. And they are like those relatives that you meet once in a blue moon in a wedding or a social gathering. Don't become relatives of Jesus, become lovers of Jesus. Meet him every day. आमेन. और केवल वचन को मनन करके, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर तुम परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करो तो जो कुछ तुम करोगे, जो कुछ करोगे उसमें सफल होगे. आप बेस्ट होगे अपने फील्ड में. अगर आप स्कूल में हो आप बेस्ट स्टूडेंट होगे. अगर आप डॉक्टर हो आप बेस्ट डॉक्टर होगे. अगर आपका चर्च है आपका बेस्ट चर्च होगा. अगर आप वर्शिप लीडर हो आप बेस्ट वर्शिप लीडर होगे. नो मैटर व्हाट यू डू यू विल बी प्रॉस्परस. Just by meditating on God's word, you will be the best in whatever you do. If you're a student, a doctor, a pastor, whatever you will do, you will have the best of what you do. Amen. All that you have to do is start loving the word of God. बस ये करना है, परमेश्वर के वचन से प्यार करो. हर रोज रात को जब आप सोने जाते हो, Every night when you are about to go to sleep, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स हटा के एक आयत लो, परमेश्वर का वचन लो. टेक वन स्क्रिप्चर एंड पुट इट इन योर माइंड, रोल इट इन योर माइंड, स्पीक इट टू योरसेल्फ. अपने आप को उसको बोलो और बार बार लगातार उसको बोलते रहो एंड देन गो टू स्लीप. take one verse from the Bible, speak to yourself, meditate on it, and then go into sleep. मैं आज आपको अपनी पर्सनल एक टेस्टिमनी बताता हूं. I will share my personal testimony with you. आपको आइडिया नहीं है You have no idea कितनी पावर परमेश्वर के वचन में है. how much power is in the word of God. एक एक वर्स में कितनी पावर है. In every single verse of the Bible there is so much power. एक स्क्रिप्चर में इतनी पावर है कि आपकी जनरेशंस को बदल सकता है यीशु के नाम में. One scripture has so much power that it will change your generations in Jesus' name. जब मैं और मेरी वाइफ हम लोग मिनिस्ट्री में आए, When me and my wife we stepped into ministry, हम लोग बहुत कर्जों के अधीन थे. we were under many debts. बैंक के लोग कॉल करते थे. The bank people used to call us. और आपको पता है वो कितने प्यार से आपसे बात करते हैं जब उन्हें कर्जा लेना होता है आपसे. And you know how lovingly they speak to you when you owe them जब a उन्हें debt. क्रेडिट कार्ड देना होता है तो वो बहुत प्यार से बात करते हैं. When they want to sell you a credit card, they are very loving. मगर जब उन्हें कलेक्शन करना होता है तो वो और भी प्यार से बात करते हैं. But when they have to do collection, they are even more loving. So हम लोग बहुत अलग अलग कर्जे हमारे जीवन में थे. So there were many different debts in our life. और एक दिन मैं वचन पढ़ रहा था. रोज हमें बैंक से कॉल आते थे And every day we would get calls और from एक the दिन मैं banks. वचन पढ़ रहा था One day I was reading the word. और मैं इफिसियों की पुस्तक, आई वाज रीडिंग द बुक ऑफ इफिशियंस, मैं इफिसियों की किताब पढ़ रहा था. और इफिसियों की पुस्तक पढ़ते पढ़ते आई स्टॉप्ड ऑन वर्स 3. आई कुड जस्ट रीड 2 scriptures and as I read verse 3 I could not read any further. और मैंने 2 ही आयत पढ़ी थी और जब मैंने तीसरा वचन पढ़ा तो मैं रुक गया, आगे नहीं पढ़ सका. And it said, और उसमें लिखा था, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. धन्य हो प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दी है. क्या लिखा है वो देगा या लिखा है दे दी है? Does it Come say, on, बताओ मुझे क्या लिखा है? दे दी है. does it say he will give or has he already given it to us? जब मैंने ये पढ़ा तो मैं रुक गया. When I read this, I stopped. देखिए कई लोग बाइबल मनोहर कहानियों की तरह पढ़ते हैं. Some people read the Bible like a magazine. ओके, एक चैप्टर खत्म हो गया, मैंने अपनी रिलीजियस ड्यूटी पूरी कर दी. Oh, Hallelujah. I've finished one chapter. I have done my religious duty. Hallelujah. हम लोग सोचते नहीं है कि वचन में क्या लिखा है. We don't even think what is written in the word. वचन कह रहा था कि परमेश्वर ने तो हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें क्या करी है?
दे दी हैं। The word was saying that God has given to us all kinds of spiritual blessings already. जब मैंने ये सुना तो मैं कह रहा था कि When I read प्रभु this, I तेरा said, वचन कह रहा है कि मैं ब्लेस्ड हूं। when I read this, I said, Lord, your word is saying that I am blessed. तेरा वचन कह रहा है मैं ब्लेस्ड हूं, Your word says I am मगर blessed. मेरा जीवन तो बिल्कुल ब्लेस्ड नहीं दिखाई देता। But my life does not look blessed at all. I cannot look at my life and say my life is blessed. मैं अपनी जिंदगी को देखकर ये नहीं कह सकता था उस समय कि वो blessed है। But your word is saying लेकिन आपका वचन that कह I रहा am है blessed, कि मैं blessed हूँ, but I am not blessed. पर मैं blessed नहीं दिख रहा। तो मुझे लगा प्रॉब्लम कहाँ है? So I said, where is the problem? तब मुझे समझ में आया प्रॉब्लम ये है कि मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करता। Then I understood the problem is I do not believe the word of God. मैं अपनी परिस्थितियों पर विश्वास करता हूं, मैं अपनी फीलिंग्स पर विश्वास करता हूं, पर परमेश्वर का वचन जो सत्य है मैं उस पर विश्वास नहीं करता। I believe in my circumstances, I believe in my feelings, but I do not believe in the truth of God's word. क्योंकि अगर कोई मुझे उस दिन पूछता कि क्या तू ब्लेस्ड है, मैं कहता बिल्कुल भी मैं ब्लेस्ड नहीं हूं। Because if that day somebody asked me, are you blessed? I would have said not at all. So मैंने एक कमिटमेंट किया, एक निर्णय लिया So I made a commitment, I took a decision that I am going to believe what God's word says about me. कि मैं विश्वास करूंगा जो परमेश्वर का वचन मेरे बारे में कहता है, Whether I feel it or I don't feel it. चाहे मुझे ऐसा महसूस हो चाहे ना हो, Because the word of God is the truth. क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे वचन के एक बिंदु भी ना टलेगा वचन का। Jesus said, heaven and earth can pass, but not even a dot of my word will pass. That's what many believers don't understand. बहुत से विश्वासी ये नहीं समझते। Just because it is written in the word does not mean it will happen with you automatically. वचन में लिखा है तो अपने आप नहीं होगा आपके साथ। वचन में लिखा है आपके लिए, It is written in the word for you. मगर अगर वचन में लिखा है जरूरी नहीं है आपके साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। But if it's written in the word, doesn't mean it will happen to you automatically. ध्यान से मेरी बात सुनो। Hear me carefully. वचन कहता है, The word says, यूहन्ना 3:16 में, John 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। God so loved the world that he gave his only son for the world. कितने लोग मानते हैं इस बात को? मुझे अपना हाथ दिखाओ। How many of you believe this is क्या true? विश्वास करते हो Do कि you परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के लिए देगा? क्या देगा? दे दिया। Will God give his son for the world? No, he already gave his son for the world. तो मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, So I ask you a अगर question. परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के उद्धार के लिए दे दिया तो पूरा जगत का उद्धार अभी तक क्यों नहीं हुआ? If God has already given his son for the entire world, then why is not the entire world already saved? It's been already 2026 years, 2026 साल हो गए, but the entire world is not saved. अभी तक पूरी दुनिया का उद्धार नहीं हुआ। मगर परमेश्वर ने तो अपना इकलौता पुत्र दे दिया। But God already gave his only son. Now hear this. सुनिए, किनका उद्धार हुआ? who God saved? जिन्होंने उस सत्य पर विश्वास किया Anyone who believed in that truth, God saved. और उस सत्य को ग्रहण किया, And received that truth. उनके साथ वो सत्य प्रगटीकरण में आ गया। To them that truth became reality. परमेश्वर का देना एक चीज है, आपका उसे विश्वास से ग्रहण करना दूसरी चीज है। God giving something is one thing, but you receiving it by faith is another thing. परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर आप मसीह को मानने वाले हो, अगर आप विश्वासी हो, तो बाइबल कहती है उसने आपको सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है। If you are a believer, if you believe in Jesus Christ, the Bible says God has already blessed you with every spiritual blessing. That means you never have to fast that God bless me. इसका मतलब आपको दोबारा कभी उपवास करने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मुझे ब्लेस करो। If you are fasting that God will bless you, you are ignorant. अगर आप फास्ट कर रहे हो कि प्रभु मुझे ब्लेस करो तो आप अनजान हो। अगर मैं आज उपवास करूं, ओ प्रभु अपने पुत्र को भेज कि वो क्रूस पे जाए, क्या प्रभु भेजेगा अपने पुत्र को? क्यों? क्योंकि वो
भेज चुका है। If I fast today, God send your son on the cross, will he send his son again? No, because he has already sent him. जैसा वो अपने पुत्र को भेज चुका है, वैसे ही वो आपको सारी आशीषों से आशीषित कर चुका है। Just as he has already sent his son on the cross, similarly he has already blessed you with every blessing. जैसे आपने उसके पुत्र को ग्रहण किया, वैसे ही आपको इस सत्य को भी ग्रहण करना है। Just as you received his son, similarly you have to receive this truth. So मैंने क्या किया, हर रोज मैं अपने कमरे में गया। So what I did, I went to my room every day. पहले दिन First day, 3 घंटे 3 hours. मैंने परमेश्वर से भीख नहीं मांगी, I did not beg God. मैंने किसी दोस्त से भीख नहीं मांगी, I did not beg a friend. मैं किसी इंसान के पास नहीं गया हाथ फैलाने, I did not go to any man to ask for anything. मैं परमेश्वर के वचन के पास गया। I went to the word of God. मैंने अपने कमरे के आगे अपनी बाइबल को खोला, I opened my Bible in my room, इफिसियों 1:3 के आगे खोला, opened it at Ephesians 1:3, और मैं बार बार उसको अपने आप को बोलने लगा। and I kept saying it to myself again मैंने and उसे again. पर्सनलाइज कर दिया। I made it for myself. I said, blessed be the God and Father of my Lord Jesus Christ, who has blessed me with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. मैंने कहा, मेरे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता धन्य है कि उसने मुझे मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दी है। And I said it to me again. और मैंने अपने And आप I से said it to me कहा, again. फिर से कहा, और मैं अपने आप से कहता रहा। I kept saying it to Oh, I myself. said I am blessed. मैं धन्य हूँ, मैं Not blessed because I हूँ। feel blessed. क्योंकि मुझे फील होता है Not इसलिए because I नहीं। have money in my account. इसलिए नहीं कि अकाउंट में पैसा I है, am blessed. मैं blessed हूँ। Because God says I am क्योंकि blessed. परमेश्वर कहता है मैं blessed And हूँ। I am what God says I am. और मैं वो हूँ जो परमेश्वर कहता है मैं हूँ। And I did it again next day. और मैंने अगले दिन फिर से यही किया। And for next 3 months, अगले 3 महीने तक I only stayed in Ephesians 1:3. मैं सिर्फ इफिसियों 1:3 में रुका रहा। मैं सुबह और शाम इफिसियों 1:3 पर मनन करता। Day and night I meditated on मैं Ephesians इफिसियों 1:3. 1:3 के साथ सोता, इफिसियन 1:3 के साथ उठता। I would sleep with Ephesians 1:3, wake up with Ephesians 1:3. पूरे दिन में मैं जहां जाता इफिसियों 1:3 में मनन करता। All day long, wherever I went, I meditated on Ephesians I 1:3. kept telling my heart, मैं अपने दिल से बोलता I रहा, am blessed. मैं blessed हूँ। Oh, I am blessed. Oh, मैं blessed हूँ। Oh, I am blessed. Oh, मैं blessed हूँ। With every spiritual blessing. सब आत्मिक आशीषों I से am blessed. मैं blessed हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा, अगर तू मेरे वचन पर दिन और रात मनन करेगा, What did God say? If you meditate on my word day and night, तो तू सफल हो जाएगा। then you will be successful. You will make your way prosperous. तू अपने रास्ते को समृद्ध बना देगा। और जैसे मैं, hear this, सुनिए, the written word was designed so that the written word will lead us to the living word. लिखित वचन इसलिए बनाया गया कि वो हमें जीवित वचन तक ले जाए। जो लिखित वचन है वो लोगोस है, The written word is the logos. जो जीवित वचन है वो रेमा है। The living word is the rema. जैसे आप लिखित वचन के ऊपर मनन करते रहोगे, As you meditate on the written word, oh lo and behold, you will have an encounter with the rema word of God. आपका सामना हो जाएगा उस जीवित वचन के साथ। और जैसे मैं वचन पे मनन कर रहा था, And as I was meditating on the word, day and night, रात और दिन, एक दिन मेरे कमरे में मुझे एक तेज आवाज परमेश्वर की आई। one day I heard the loud voice of God in my room. I don't know if it was audible. मुझे नहीं पता सुनाई देनी थी। Like if you were in my room, you would have heard it or not. I don't know. अगर आप मेरे कमरे में होते आप सुनते या नहीं मुझे नहीं पता, But it was pretty audible to me. पर मुझे अच्छे से सुनाई दी। And God said, my son, और परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे, today I make a covenant with you. आज मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ। As long as you live, जब तक तू जिएगा, you will never see lack in your life. तू कभी अपनी जिंदगी में कमी घटी नहीं देखेगा। And from that day till today, it's been more than a decade and I do not know what lack means. और उस दिन से आज तक 10 साल से ऊपर हो गया, मुझे नहीं पता कमी घटी क्या होती I है। am living a blessed life. मैं एक ब्लेस्ड जीवन जी रहा हूँ। I'm living a blessed life. मैं एक ब्लेस्ड जीवन जी रहा हूँ। Not because my uncle is a businessman.
इसलिए नहीं कि मेरे अंकल बिजनेसमैन है, Not because I know a very important person. इसलिए नहीं कि मैं किसी इंपॉर्टेंट आदमी को जानता हूँ, Not because I won a lottery. इसलिए नहीं कि मेरी लॉटरी लगी I है, am living a blessed life. मैं ब्लेस्ड जीवन जी रहा Because हूँ, I believe the word which says, I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. क्योंकि आज मैं उस वचन पर विश्वास करता हूँ जो कहता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ सारी आत्मिक ब्लेसिंग से मसीह यीशु में। You have to come to a place where you believe what the written word says about you. आपको वहां पर आ जाना है जहां पर आप विश्वास करते हो जो लिखित वचन आपके बारे में कहता है सच है। आप जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? You know what the problem is? The problem is we rather trust our feelings than the word. समस्या है हम अपनी फीलिंग्स पे विश्वास करते हैं, वचन पर नहीं। Feelings will deceive you. फीलिंग्स आपको धोखा दे देंगी, Feelings go up and down. फीलिंग्स ऊपर नीचे होती रहेंगी। The Bible says word of God abides forever. बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन हमेशा स्थिर रहता है। John 17:17, Jesus said, Father, sanctify us with your truth. Your word is the truth. यूहन्ना 17:17 वचन कहता है, हे पिता अपने सत्य से हमें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। Jesus said, I will tell you the truth and truth will set you free. यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। ध्यान से मेरी इस बात को सुनो। Hear carefully. कई आज विश्वासी जो रोते हैं, यीशु यीशु मुझे कब तू डिलीवर करेगा, कब सेट फ्री करेगा? Many believers they beg and they cry before Jesus, Jesus when will you set me free, when will you Jesus set deliver? me free. यीशु मुझे आजाद करो। Well, Jesus will set you free exactly the way he said he will set you free. यीशु आपको वैसे ही आजाद करेगा जैसा उसने कहा कि वो आपको आजाद करेगा। और कैसे यीशु ने कहा वो आपको आजाद करेगा? How did he say he will set you free? उसने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। He said, I will tell you the truth and the truth will set you free from every bondage. So hear this. सुनो, For every deliverance there is a truth. हर एक छुटकारे के पीछे एक सत्य होता है। Let me say that again. मैं दोबारा कहता For हूं, every deliverance that you need, there is a truth that you have to believe. हर एक छुटकारा जो आपको चाहिए उसके लिए एक सत्य है जो आपको विश्वास करना पड़ेगा। मुझे कर्जों से छुटकारा चाहिए था। I needed deliverance from loans, from debts. कैसे यीशु ने मुझे छुटकारा दिया? How did Jesus अपने deliver वचन me? का सत्य बताकर। By telling me the truth of God's word. Because hear this. सुनिए, What you are going through right now is a fact. जो आप अभी झेल रहे हो जिंदगी में वो एक फैक्ट है। वो एक तथ्य है। It's a fact. वो क्या है? A fact is something that you can touch with your, you can see it with your five senses. You can know it with your five senses. A fact वो एक ऐसी चीज है जो अपने 5 सेंसेस से आप देख सकते हो, परख सकते हो, जान सकते हो। Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूं, What you are going through in your life right now is a fact. आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो एक फैक्ट है। What God's word says is the truth. जो परमेश्वर का वचन आपके बारे में कहता है वो सत्य है। Facts keep changing. Truth is eternal. फैक्ट्स बदलते रहते हैं, सत्य हमेशा एक रहता है। And what you have to do is you have to bring your fact and submit it to God's truth. और आपको यह करना है अपने फैक्ट को लाके परमेश्वर के वचन के सत्य के नीचे रख देना है उसको। And the truth of God's word will swallow your fact. और परमेश्वर के वचन का सत्य आपके फैक्ट को खत्म कर देगा, खा जाएगा उसको। कम विश्वासी हैं जो वचन को पढ़ते हैं, और भी कम है जिन्हें पता है वचन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। There are few believers that read the word and even fewer who know how to use the word. We don't read the Bible to get PhD. हम PhD करने के लिए बाइबल नहीं पढ़ते। Full head damage. For full head damage. You know PhD? I'm just kidding. We read the Bible so that we learn how to send the word. हम बाइबल इसलिए पढ़ते हैं कि हम सीखे कैसे वचन को भेजना है। Amen. आमेन। यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें, सत्य
को महसूस नहीं किया जाता, सत्य पर विश्वास किया जाता है। Jesus said, I will tell you the truth and the truth will set you free. You don't feel the truth, you believe the truth. Many believers are trying to feel the truth. बहुत से विश्वासी फील करना चाहते हैं ट्रुथ को। You don't feel the truth. आप ट्रुथ को फील नहीं करते, You believe the truth. आप ट्रुथ को मानते हैं। I started to believe I am blessed when nothing in my life looked like a blessing. मैं विश्वास करने लग गया कि मैं ब्लेस्ड हूं जब मेरी जिंदगी में कुछ भी ब्लेस्ड नहीं दिख रहा था। परमेश्वर एब्राम को बोला, जो एब्राम और उसकी बीवी साराई बांझ थे, उनके कुछ बच्चे नहीं थे, और उस समय परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया और कहा तेरा नाम एब्राहम है। God called Abram and Sarai that had no children. Sarah was a barren, and God said, your name is Abraham. जब परमेश्वर ने उसका नाम एब्राहम किया, उसके कितनी संतानें थी? Zero. When God changed his name to Abraham, how many children did he have? Zero. इब्राहिम ने ये नहीं कहा प्रभु देख मेरे तो कोई संतान नहीं है, नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसका नाम चेंज कर दिया। पहले वो अब्राहम परमेश्वर ने बना दिया, तब उसके बच्चे मैनिफेस्ट होने लगे। First, God did not give him children. First, God changed his name to Abraham, and then his children started to be in reality. If you want to live in victory, you will have to believe God's word. अगर आप जय में चलना चाहते हो, आपको परमेश्वर के वचन को मानना होगा। मैं आपको एक जीवित गवाही बताता हूं जो परमेश्वर ने करी। Let me tell you a true testimony that God did. एक व्यक्ति हैं जिनको कैंसर हुआ। There's a person who had cancer. और वो प्रभु को नहीं जानते थे, उनका दोस्त परमेश्वर को जानता था। And he did not know the Lord. His friend knew the Lord. और डॉक्टर ने उनको कहा तेरे पास अब केवल 3 महीने बचे हैं जिंदा रहने के लिए। And the doctors told him, you only have 3 months left to live. तो उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि मैंने पूरी जिंदगी मैंने अपने बनाने वाले परमेश्वर को मैंने नहीं जाना, मैं अब उसको जानना चाहता हूं। तो उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। So he told his friend, all my life I did not know the God my maker, so he gave his life to God. और उसने कहा मेरी मरने से पहले एक इच्छा है कि मैं पूरी बाइबल को पढ़ना चाहता हूं। And he said, I have one desire before I die, I want to read the entire Bible. तो उसने कहा मुझे एक बाइबल दे, So he मैं said- जेनेसिस से उत्पत्ति से बाइबल पढ़ना चाहता हूं। He said, give me a Bible, I want to read it from Genesis. उसके दोस्त ने कहा नहीं, तू उत्पत्ति से मत पढ़, तेरे पास इतना समय नहीं है, तू मर जाएगा, तू रेवलेशन तक नहीं पहुंचेगा, तो तू मैथ्यू से पढ़। His friend told him, no, you don't have so much time left, you will die in the midway, so you better start from Matthew. उसने कहा नहीं, परमेश्वर मुझे जीवित रखेगा जब तक मैं पूरा प्रकाशित वाक्य ना पढ़ दूं। He said, no, God will keep me alive until I finish till the book of Revelation. सो वो पढ़ने लगा। He started to read. फिर वो यिर्मयाह की पुस्तक में पहुंचा। So he reached the book of Jeremiah. And in the book of Jeremiah, there's a verse where it says, "Is there no word of the Lord for me?" और यिर्मयाह की किताब में एक वचन में लिखा है, क्या यहोवा का मेरे लिए कोई वचन नहीं है? और वो आगे नहीं पढ़ा, उसने रोक दिया। उसने कहा प्रभु, And he stopped there. He did not read further. उसने कहा प्रभु क्या मेरे लिए आज कोई वचन नहीं है? He said, Lord, don't you have a word for me today? और परमेश्वर ने कहा, वो हॉस्पिटल में था, प्रभु ने कहा तू बाहर जा पार्किंग में। He was in the hospital and the Lord said, go out in the parking. और वो बाहर गया He came out. और एक व्यक्ति वहां पे गाड़ी में आया और उस व्यक्ति ने उनको कहा परमेश्वर ने मेरे मन में एक वचन आपके लिए डाला है। And he came out in the parking and the man came in his car and said, God has put a word in my heart for you. और उन्होंने कहा Isaiah 53:5। And he said, यशाया 53 उसका 5. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पे ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं. और वो व्यक्ति चला गया कार ले। And that man went away. और ये जो व्यक्ति था ये चिल्लाने लगा, But this man started to scream, मुझे परमेश्वर का वचन मिल गया, I have got the word of God. ये गया, He went. इसने अपनी बाइबल में वो वचन हाईलाइट किया He highlighted that verse in और his इसने Bible. और ये अब बोलने लगा, And he started उसके to say, कोड़े खाने से By his stripes मैं चंगा हो चुका हूँ। I have been healed.
ये डॉक्टर के पास गया, He went to the बोला, doctor. "डॉक्टर, Said, doctor, उसके कोड़े खाने से by his stripes, मैं चंगा हो चुका हूं। I am healed. तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, तुम्हारा टेस्ट करते हैं। Doctor said, let us test. टेस्ट किया गया, They tested. पता चला कैंसर और फैल गया शरीर में। Found out cancer has spread more in the body. What do you do आप क्या करोगे when you do not see what the word says? जब आप वो नहीं देखते जो वचन में लिखा है आपके लिए? That's the fight of faith Bible talks about. ये विश्वास की लड़ाई है जिसके बारे में बाइबल कहती है। And the Bible says, hold fast your confession of faith without wavering. और बाइबल कहती है अपने विश्वास के अंगीकार को पकड़ के रखो, हिलो मत उससे। तो डॉक्टर ने उनको बोला डॉक्टर सेड कि तेरा कैंसर कोई ठीक नहीं हुआ, तेरा कैंसर तो और फैल गया तेरे शरीर में। डॉक्टर सेड योर कैंसर इज नॉट हील्ड, इट हैज देख, स्प्रेड मोर। रिपोर्ट में लिखा है। He said, look, it's in the report, written in उसने the कहा report. रिपोर्ट में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, वचन कहता है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। He said, whether it is written in the report or not, but it is written in God's word that I am healed by the stripes of Jesus. डॉक्टर ने कहा ये पागल हो गया। Doctor said he's lost वो his mind. सुबह शाम इस वचन पे मनन करता, इसकी घोषणा करता कि पर प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। Day and night he would meditate on God's word. He would speak, declare it, I am healed by the stripes of Jesus. उसने डॉक्टर को कहा मुझे डिस्चार्ज कर दो। He said to the doctor, discharge me. डॉक्टर ने कहा तू 1 महीने में मर जाएगा। Doctor said, you will die in a month. उसने कहा कोई बात नहीं। He said, it's वो okay. डिस्चार्ज लेकर घर चला गया। He took discharge, went 1 home. महीना हो गया नहीं मरा। 1 month वचन की passed, घोषणा did करता not रहा। die. 2 महीने हो गए नहीं मरा। 2 months 3 went, he महीने did हो not गए die. नहीं 3 मरा। months went, did 4 die. महीने हो गए नहीं 4 मरा। months did not 5 die. महीने हो गए नहीं 5 मरा। months did not die. 6 महीने हो गए नहीं मरा। 6 months did not die. अब डॉक्टर ने इसको बोला आ तू जिंदा कैसे, तेरा हम लोग चेकअप करेंगे। So the doctors called him. Surprisingly, he said, how are you alive? Come, we will test you. वापस हॉस्पिटल गया, He went to the ब्लड hospital, टेस्ट लिया। did a blood test. जब रिपोर्ट आई When the report तो came, उसमें लिखा था कोई कैंसर नहीं है, पूरी रीति से चंगा हो चुका था। it said no cancer. He was completely healed. That's the power of God's word. ये परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य If है। you stand on the word of God without wavering, अगर आप परमेश्वर के वचन पर स्थिर खड़े हो गए बिना डगमगाए, आपका उत्तर वचन में है। your answer is in the word.